Welcome back. This time for part B of the amendments. Now, आज what we are going to do is some small amendments, but interesting ones. उसने छोटे changes करे हैं, but they're pretty interesting. So, let's have a look at some of these sections we are going to do today. सबसे पहले we will start with section 1010D. Now, what does section 1010D say? Let's first have a look at something called life insurance. We all know life insurance is very essential in our society. Life insurance में एक तो risk cover है, एक investment भी होती है आजकल. Now, to encourage everybody to take some kind of life insurance, income tax has given certain incentives. हमें पता है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 13-14 तो आपको 80C की डिडक्शन मिलेगी. नाउ 80C में द डिडक्शन वी नो इज अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ कैपिटल सम इंश्योर्ड. मतलब अगर हमने इंश्योरेंस 1 लाख की कराई है और प्रीमियम जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में सपोज 20,000 था, 20,000 है, 20,000, 20,000 एंड 20,000. ये स्कीम है एज पर इंश्योरेंस कंपनी, पेबल है. When the money is received on maturity, तो ये exempt होता है under section 1010D, provided प्रीमियम पेबल किसी भी साल 20% ऑफ सम इंश्योर्ड से ज्यादा नहीं है. Then 80C said the deduction is for money paid during 13-14. So अगर during 13-14 मैंने प्रीमियम 30,000 पे कर दिया और अगले साल 10,000 पे करा, 20,000, 20,000, 20,000. Let us assume this is 2011-12, 2012-13, 2013-14, 14-15, 15-16. Our year being 2013-14. आप नोट करेंगे प्रीमियम पेबल किसी भी साल कैपिटल सम इंश्योर्ड के 20% से ज्यादा नहीं है. Therefore, मैच्योरिटी पे मेरे को 1 लाख प्लस बोनस, let's assume 70,000 comes to me in the 10th year. ये जो 1,70,000 आएगा ये exempt हो जाएगा. परंतु according to 80C I will get a deduction of only 20,000 in 11-12. अगले साल सिर्फ 10,000 मिलेगी. पिछले साल का 10,000 अगले साल नहीं मिलेगा, बिकॉज रिमेंबर ऑल डिडक्शंस आर फॉर मनी पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड वी विल गेट अ डिडक्शन ऑफ 20,000, 20,000, 20,000. ये लॉ था फॉर पॉलिसी टेकन ड्यूरिंग 1403 एंड 1412, इस पीरियड के बीच में. लेकिन अगर पॉलिसी हमने 1412 के बाद ली है ऑन और आफ्टर 1412, देन रिमेंबर ये 20% की जगह इट वाज 10%. अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, ये सिर्फ मैं याद करा रहा हूं जो हमने पहले करा हुआ. विच मीन्स इन द सेम एग्जाम्पल if I say the policy is taken
on 1/4/12. नाउ क्या होगा, क्योंकि सम पेबल इज मोर देन 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, ये जो 1 लाख प्लस 70,000 10th ईयर में आएगा, it will now become taxable, because section 1010D says the money or the premium payable in any 1 year should not be more than now 10%, because policy is taken on or after 1/4/12. Similarly 80C में amendment हुआ, and 80C amendment said what? The deduction will now be only up till 10%. therefore यहां पर मुझे deduction मिलेगा 10,000 10,000 10,000 10,000 and 10,000. यहां तक is the law as it was. अब इस साल अमेंडमेंट्स दो हुई हैं, एक 1010D में हुई है और एक 80C में हुई है. In 80C he says for if the policy is taken on or after 1/4/13 and is for a person covered by 80U or 80DDB. Now 80U में handicap person आ रहा है, 80DDB में is a person specified ailment का खर्चा है. In 80DDB it is spouse, children, parents, brothers and sisters. That means if I am taking a policy for a person covered by 80U who's my relative, or a person जिसकी ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूं अंडर 80DDB, I am bearing the expenditure, उनके लिए अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो मुझे 80C की डिडक्शन अब मैक्सिमम 15% हो गया. So if this policy is taken on or after 1/4/13 and is for one of these two people, अगर इनके लिए नहीं है तो 10% ही रहेगा, पर अगर इनके लिए है then it becomes a maximum of 15%. Because the sum payable in any 1 year exceeds 15%, जो accumulated amount 10th year में आएगा, that now becomes taxable. Plus the deduction over here will now be a maximum of 15%. So 15,000 यहाँ हो जाएगी, यहाँ 10 रहेगी. Here it will be 15,000, 15,000 and 15,000. So if we read it from the notes, पहले 80C को खत्म करेंगे. The amount of deduction shall not be more than, आप सुने, मैं आपको समझा रहा हूं 80C में क्या लिखा है. अमाउंट ऑफ डिडक्शन शैल नॉट बी मोर देन, कितना हो गया, 20% of the capital sum insured for policies issued on or after 1/4/3 but before 1/4/12, 10% for policies issued on or after 1/4/12, and 15% where insurance is on the life of a person with disability or severe disability or a person suffering from a disease or ailment. ये हो गया 80U, ये हो गया 80DDB and issued on or after 1/4/13. So this is the amendment in 80C. अब रही बात 1010D में क्या amendment आई है. We've done keyman insurance policies. So let's look at a word called keyman insurance. What is keyman insurance? Now, keyman insurance has been defined in the explanation to section 1010D. हमने इसका इफेक्ट करा था.
हमने कहा था अगर कीमैन इंश्योरेंस से बेटा जब इंप्लॉय को मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, सो लेट्स टेक टू पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, defines a Keyman insurance policy to mean a life insurance policy taken by a person, एक बंदे ने, on the life of another person who is or was the employee or is or was connected in any manner whatsoever with the business of such person. तो क्या कह रहा है? कह रहा है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है तो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस मैंने अपने लिए नहीं ली, अपने रिलेटिव्स के लिए नहीं ली, या तो अपने एम्प्लॉय के लिए ली या किसी ऐसे बंदे के लिए ली जो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है. सो वी हैड सेड इफ द एम्प्लॉयर पेज प्रीमियम अंडर कीमैन इंश्योरेंस, नाउ इस प्रीमियम की डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1) मिल जाएगी एम्प्लॉयर को. एम्प्लॉय के हाथ में कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर इज नॉट टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं होगा, ऐसा कोई पर्क नहीं है. 17(5) में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करी थी. नाउ कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बट इट इज अ प्रीमियम टेकन बाय वन पर्सन फॉर द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन. मैंने खुद के लिए नहीं लिया, एम्प्लॉयर ने मेरे लिए लिया. इन दिस केस कल को एम्प्लॉय को पैसा आता है, टुमारो गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू द एम्प्लॉय, ही रिसीव्स मनी, उसके हाथ में 17(3) में टैक्सेबल होगा. पर अगर बेनिफिशियरी एम्प्लॉयर ने अपने आप को खुद बनाया हुआ था, दैट मीन्स एम्प्लॉय को कुछ होने पे द एम्प्लॉयर गेट्स द मनी, देन दिस इज टैक्सेबल इन हिज हैंड्स अंडर सेक्शन 28, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी. अगर मैंने इंश्योरेंस कराई थी अपने फ्रेंड के नाम, क्योंकि ही गेव मी एडवाइस जिसके बेसिस पे मैं अपना बिजनेस करता हूं. Now something happens to him and the maturity of the Keyman policy goes to him. उसके हाथ में ना सैलरी हेड में जाएगा ना बिजनेस हेड में जाएगा, क्योंकि ना वो एम्प्लॉय है ना वो बिजनेस कर रहा है. उसके हाथ में इट वेंट अंडर अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56. सो बीइंग द मीनिंग बीइंग दैट कीमैन इंश्योरेंस से मेच्योरिटी पे जब पैसा आता है वो टैक्सेबल होता है, या सैलरी हेड में होगा या बिजनेस हेड में होगा या अदर सोर्सेज में होगा. So how did people start manipulating it? तुम्हें मैं कई बार बोलता हूं, इन आवर कंट्री पहले लॉ बनता है, फिर जुगाड़ बनते हैं उसको तोड़ने के. अब ये जुगाड़ क्या निकाला लोगों ने? उन्होंने बोला अगर सपोज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के नाम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लेट्स से 10 साल की पॉलिसी, 10 साल के बाद मैच्योरिटी होने वाली है, 9 साल एम्प्लॉयर प्रीमियम पे करेगा, 10वें साल में एम्प्लॉय को असाइन कर देगा और बाकी प्रीमियम एम्प्लॉय पे करेगा. अब इससे क्या हुआ? ये इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी से इस पॉलिसी को कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी हटवा के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा लेंगे. और इंश्योरेंस कंपनी क्यों करेगी? भाई उनको काम मिल रहा है. एक एम्प्लॉयर है अपने 100 एम्प्लॉइज के नाम पे पॉलिसी ले रहा है, कहता जी मैं 9 साल तक तो मैं प्रीमियम पे करूंगा, 10वें साल मेरे एम्प्लॉइज करेंगे, आपने देनी है नहीं तो मैं दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूं. इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट कंसर्न विद द टैक्स. भाई इनकम टैक्स वाले को टैक्स मिले ना मिले उनका काम चलेगा. सो कई ऐसे कंपनीज ने ये असाइनमेंट रूल फॉलो कर लिया. व्हाट दीज पीपल स्टार्टेड डूइंग वाज मैच्योरिटी पे 10th ईयर में जब एम्प्लॉय को पैसा आया, अब ये कहता है ये कीमैन इंश्योरेंस नहीं है, दिस इज लाइफ इंश्योरेंस विच इज एग्जेम्प्ट अंडर 10(10)(d). So what did the finance minister do? Now the finance minister said it has been noticed that policies taken as Keyman insurance policies
जो शुरू में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है, आर बीइंग असाइंड टू द कीमैन बिफोर इट्स मैच्योरिटी। जैसे मैंने बताया, वो पॉलिसी उसको ट्रांसफर कर दी जाती है। द कीमैन pays the remaining premium on the policy and claims the sum received under the policy as exempt on the ground that the policy is no longer a Keyman insurance policy. Thus, exemption under 1010D is being claimed for policies which were originally Keyman insurance policies, but during the term these were assigned to some other person. The courts have also noticed this loophole in law. So, court ने बोला ये loophole है, प्लग हो गया, उन्होंने अमेंडमेंट कर दी। फाइनेंस एक्ट 13 ने बोला, विद अ व्यू टू प्लग द लूप होल एंड चेक सच प्रैक्टिस टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड द प्रोविजंस ऑफ 1010D टू प्रोवाइड दैट अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी व्हिच हैज बीन असाइन्ड टू एनी पर्सन ड्यूरिंग इट्स टर्म विद और विदाउट कंसिडरेशन शैल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। विच मीन्स अगर आपने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी असाइन कर दी है और वो इंश्योरेंस कंपनीज ने उसको लाइफ इंश्योरेंस भी बना दिया है, पर इनकम टैक्स के लिए इट विल कंटिन्यू एज कीमैन इंश्योरेंस, व्हिच मींस इट विल स्टिल बी चार्जेबल टू टैक्स। सो अब हम समझते हैं एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1048। वी नो रिसीट्स आर असेसेबल इन इंडिया इफ आइदर दे एक्रू इन इंडिया और आर रिसीव्ड इन इंडिया or are deemed to accrue or arise in India. Now, if you look at what is the main import for India, the main import जहां पर हमारा मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, तेल, ऑयल, पेट्रोल. Now, if we import oil and we make payment for oil in dollars, हमारे डॉलर रिजर्व्स यूज हो जाएंगे. सो वी विल एट टाइम्स नीड टू बाय डॉलर्स. द मोमेंट वी स्टार्ट बाइंग डॉलर्स, द डिमांड फॉर डॉलर्स गोज अप. और अगर डिमांड बढ़ गई तो रेट बढ़ जाएगा. बिकॉज इंडिया इज अ लार्ज बायर, समटाइम्स वी कैन नेगोशिएट विद कंपनीज दैट हमारे टर्म्स के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे. सो वीव हैड सम negotiations with foreign companies in Iran, Afghanistan, etc., where we will pay for oil, but we say we will pay it in India in Indian rupees. अब अगर हम इंडियन रुपीज में इंडिया में पे करेंगे तो रिमेंबर उनके हाथ में वो इनकम एक्रू हो जाएगी इन इंडिया. एंड इफ इट इज एक्रूइंग इन इंडिया, इवन इफ द फॉरेन कंपनी इज अ नॉन रेजिडेंट, वो इंडियन इनकम हो जाएगी और उस इंडियन इनकम पे इंडिया में टैक्स लग जाएगा. सो सेक्शन 10 सबसेक्शन 48 इज डूइंग सिंपली एग्जेम्प्टिंग इट, बिकॉज ऑब्वियसली उनको हम टैक्स नहीं लगा सकते. इन द नेशनल इंटरेस्ट a mechanism has been devised to make payment to certain foreign companies. ये foreign companies कौन सी होंगी? Approved वाली होंगी. उसके बारे में कौन सी approved है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे. वो notification आएगी by the central government in the official gazette, भाई ये company approve हो गई है for 1048. So to make payment to certain foreign companies in India in Indian currency for import of crude oil, from this year उन्होंने amendment करी है and they have said or any other goods or rendering of services as may be notified by the central government, which means पिछले साल तक ये वाला सेक्शन सिर्फ इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल के बारे में इंडिया में रुपीज में पेमेंट करने पे इनकम एग्जेम्प्ट कर रहा था. अब उन्होंने बोल दिया है कोई भी और पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज एज आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी पेमेंट अगर इंडिया में हुई, इन इंडियन करेंसी भी हुई, तो भी एग्जेम्प्ट है. Now, the current provisions of the Income Tax Act would render such payment taxable in India because the payment is being received by these foreign companies in India. This would not be justified when such payment is based on national interest, and particularly when no other activity is being carried out in India by these foreign companies except receipt of payment in Indian currency. It is therefore proposed to insert clause 48 and 10 to provide for exemption in respect of any income of a foreign company received in India in Indian currency on account of sale of crude oil to any person in India subject to conditions which are notified. So ये हो गया सेक्शन 1048.
Then we go to 80 CCG. Now what was 80 CCG? Let us first remember 80 CCG था क्या. राइट, लास्ट ईयर भी था, इस साल सिर्फ चेंजेस करें. लास्ट ईयर क्या कहता था? इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड इक्विटी शेयर्स. कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी बेटा रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर इक्विटी शेयर्स नोटिफाइड वाले, राजीव गांधी इक्विटी लिंक स्कीम है जिसके बारे में उन्होंने नोटिफाई करा फॉर 80 सीसीजी, उसके तहत उसके अंडर अगर आप कोई शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो आपको 80 सीसीजी की डिडक्शन मिल जाती है. अब डिडक्शन कितनी बोली थी उसने? 50% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट, पर उसने बोला था और 25,000 विच एवर इज लेस. तो हमने सीखा था कि मैक्सिमम अगर हम 50,000 तक इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी. मैं 4 लाख इन्वेस्ट करता हूं, 50% तो 2 लाख आ गया, पर और 25,000 विच एवर इज लेस कितना बन जाएगा? 25,000. फिर कंडीशंस क्या थी? पहली बार डीमैट अकाउंट खुलना चाहिए, दैट मीन्स इट मस्ट बी अ न्यू रिटेल इन्वेस्टर. ब्रोकर को यह डिडक्शन नहीं मिल रही थी, ये डिडक्शन सिर्फ मिल रही थी इन्वेस्टर को, आपके मेरे ऐसे लोग जो पहली बार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं. और पिछले साल तक ये डिडक्शन सिर्फ 1 साल मिल रही थी. इसका यह मतलब नहीं है कि 12, 13 या 13, 14 में मिल रही थी. जिस भी साल आपने पहली बार ट्रेडिंग शुरू करी उस साल आपको मिल रही थी. एंड योर टोटल इनकम शुड हैव बीन लेस देन और इक्वल टू 10 लाख ग्रॉस टोटल इनकम. इस साल उसने क्या किया? 2-3 बातें चेंज करी. एक तो जीटीआई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12 लाख. कुछ और लोग आ गए जिनकी 11-12 लाख तक जीटीआई थी, वो भी अब ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. एक 3 साल के लिए कर दी. पहला साल जब डीमैट अकाउंट खोला उस साल, फिर अगले साल और उसके अगले साल, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए तुझे अब ये डिडक्शन दे रहा. प्लस अब कहता है म्यूचुअल फंड्स अप्रूव्ड में भी इन्वेस्टमेंट चल जाएगी. सो नाउ देयर आर 3 चेंजेस है. एक जीटीआई 10 से बढ़ा के 12 कर दिए, एक म्यूचुअल फंड्स अप्रूव्ड वाले ऐड कर दिए. वो कौन से होंगे? अगेन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स ओवर हियर. आपके लिए नोटिफाइड म्यूचुअल फंड चल जाएगा, अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड चल जाएगा. एंड देयर इज नाउ कंडीशन फॉर 3 years. So if we read this, 80 CCG investment in listed units of equity oriented mutual fund shall also be eligible for deduction. Remember equity oriented mutual fund हमने capital gains में पढ़ा था, where investment in equity shares is more than 65%. It is further proposed to provide that the deduction under this section shall be allowed for 3 consecutive years beginning with मतलब पहला साल relevant to the previous year in which the listed equity shares were first acquired by the new retail investor whose GTI for the relevant assessment year does not exceed 12 lakhs. So this is the amendment in 80 CCG. Then we come to 80D. Now 80D में I think one of the things we remember is medical insurance premium to insurance companies. हमने कहा था सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन जो डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए प्रीमियम पे करा तो आपको मैक्सिमम 15,000, और अगर जिसके लिए पे करा वो सीनियर सिटीजन है एंड रेजिडेंट है तो ये 20,000 हो जाते. देन देयर वर पेरेंट्स, वेदर डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट, उनके लिए भी अगेन 15,000, बट इफ एनी वन ऑफ देम वाज अ सीनियर सिटीजन एंड अ रेजिडेंट देन इट केम अप टू 20,000. वी ऑल्सो रिमेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स की कॉन्ट्रीब्यूशन जो है
क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है बेटा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज आपने अपनी हेल्थ इंश्योर कराई है एंड यू इंश्योर्ड योर हेल्थ बाय पेइंग अ प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनीज, ताकि कल को इफ यू आर सिक इंश्योरेंस कंपनीज विल गिव यू मनी। सो ये डिबेट हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, जैसे आर्मी वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं, इनकी इंश्योरेंस को इंश्योरेंस कंपनी में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट हैं जो इनकी हेल्थ स्कीम्स निकालते हैं, ये लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहां पर। तो क्या वो कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन एटीडी में मिलती है? द आंसर वाज यस, बट लिमिट नहीं बढ़ाई थी, लिमिट तो वही 15,000 के बीच में थी। इस साल उन्होंने बोला है सेंटर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स भी ऐड हो गई हैं। सो ये जो अमेंडमेंट हुई है फाइनेंस एक्ट 13 में होगी। दैट मीन्स कोई कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में हुई उसकी भी अब आपको डिडक्शन मिल रही है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ना ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप था, इसके ऊपर लिमिट तो वही 15 वाली है, बट देन रिमेंबर देयर वाज एन एडिशनल लिमिट। सो इन तीनों का मिला के 15,000 था, ये तीनों मिला के 15 था, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे मैक्सिमम अलाउड वाज 5,000। तो बेटा आप थोड़ा सा, अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना, तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दे, जरा एक बार पहले 80D को पढ़ गया। क्वेश्चन तो मैं अभी कराऊंगा 2 मिनट में, या पूरा क्वेश्चन सुन के रिवाइज करो एंड लिसन टू दिस अगेन, बिकॉज द अमेंडमेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विच आई हैव ऑलरेडी डन एक्चुअली, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। बाकी मैं एक बार तुम्हें पूरा इसका एग्जाम्पल करके दिखा देता हूं सो दैट रिकॉल हो जाए। देन वी ऑल्सो रिमेंबर, इसका एग्जाम्पल करने से पहले वी विल कम टू पेमेंट्स इन कैश। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इस बार के पेपर में बेटा ये जो पॉइंट मैं अभी कराने जा रहा हूं, यू मस्ट रिमेंबर इट वेरी वेल। थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना। हमने बात करी है पेमेंट्स कैश वाली अलाउड नहीं होती। क्यों नहीं होती यार? क्योंकि कैश की पेमेंट्स में मैनिपुलेशन हो जाती है, कैश की पेमेंट्स में फ्रॉड हो सकते हैं, कैश की पेमेंट्स में खर्चे आपने बढ़ा दिए, ब्लैक मनी के साथ आप कैश में पेमेंट्स करोगे। सो व्हाट आर द प्रोविजंस इन द इनकम टैक्स एक्ट जो कैश पेमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? लेट्स सी, याद कर, क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंटरेस्ट कैश में देने से डिसला होता था? कर याद, नहीं होता था। इनफैक्ट कैपिटल गेन्स में भी कहीं नहीं था, सिर्फ बिजनेस हेड में एक सेक्शन था हमारे पास 40A3। वो क्या कहता था? एक दिन में एक बंदे को एक बिल के लिए अगर 20,000 से ज्यादा पेमेंट हुई, एंड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स रिमेंबर इट वाज 35,000, तो पेमेंट जो है वो डिसला हो जाएगी। ऐसा कोई भी खर्चा अगर 30 से लेके 37 में अलाउ होता है, उसके लिए अगर आपने पेमेंट एक दिन में एक बंदे को एक बिल के लिए 20,000 से ज्यादा करी, तो वो पेमेंट डिसला हो जाती थी। वो लॉ रिमेन्स द सेम, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स वी डिड रूल 6DD। उसमें क्या बताया गया था? वो बैंक्स को पेमेंट करी है ना, बैंक्स के थ्रू पेमेंट करी है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी है, डेबिट कार्ड से पेमेंट करी है, तो वो अलाउ हो जाती थी। दैट मीन्स 20,000 से पेमेंट अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक। सो क्या क्या डिसअलाउ था? कैश डिसअलाउड था, सेल्फ चेक डिसअलाउड था, बेरर चेक, क्रॉस चेक, ये सब डिसअलाउड था। हाँ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ECS
इंटरनेट बैंकिंग, ये सब रूल 6DD ने अलाउ कर दिया था. बट इवन अंडर बिजनेस हेड, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज कैश में पे होता, चाहे वो 20,000 से कम है चाहे 20,000 से ज्यादा है, वो अलाउ नहीं होता. व्हेन वी से कैश के अलावा, दैट मीन्स ओवर हेयर सेल्फ चेक अलाउड नहीं है, कैश अलाउड नहीं है, परंतु बेरर चेक, क्रॉस चेक, अकाउंट पे चेक एक्सेट्रा से अलाउड होता है. सो इफ वी टेक अ क्वेश्चन, वी से P&L अकाउंट में स्टेशनरी 40,000 रुपए का एक बिल डेबिट हुआ है और हेल्थ इंश्योरेंस 3,000 रुपए की डेबिट हुई है, और नीचे कहता है दोनों पेमेंट्स कैश में हुई हैं. ना ये 40,000 तो 40A3 में डिसअलाउ हुई है बिकॉज इट इज मोर देन 20,000. ये 3,000 36(1) में डिसअलाउ हुई है बिकॉज इट इज हेल्थ इंश्योरेंस. दोनों डिसअलाउ हो गए. अगर ये स्टेशनरी का बिल या कोई और ले लेते हैं, चलो ऑडिट फीस इस 15,000 और ये भी कैश में पे हुआ, ये अलाउ हो जाएगा बिकॉज इट इज लेस देन इक्वल टू 20,000. So business head had a limit of 20,000, but that limit of 20,000 was on all expenses covered by 30 to 37, but it did not cover health insurance to employees. Now let's go to the chapter of deductions. Deductions के chapter में क्या limits हैं? Now in the chapter on deductions, बेटा, ये जो 80C to 80U की डिडक्शंस हैं, क्या ये मैं सारी कैश में पे कर सकता हूं? रिमेंबर ऑल दीज डिडक्शंस आर अलाउड ऑन पेड बेसिस ड्यूरिंग द ईयर बिफोर 31st ऑफ मार्च. ड्यू डेट ऑफ रिटर्न का इनसे कोई लेना देना नहीं है. और क्या मैं ये कैश में पे कर सकता हूं? अनलेस रिस्ट्रिक्टेड, यस. तो रिस्ट्रिक्शंस कहां कहां है? नाउ द रिस्ट्रिक्शन इज, ये पिछले साल भी था, कोई नई बात नहीं करा रहा हूं मैं. रिस्ट्रिक्शन कहां है? 80D में. 80D में ये दोनों अदरवाइज देन इन कैश, मतलब कैश और सेल्फ चेक से नहीं होगा. दैट मीन्स बेरर चेक, क्रॉस चेक, अकाउंट पे चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब अलाउड है, सिर्फ कैश से अलाउड नहीं है. दैट मीन्स द थिंकिंग इन 40A3 एंड डिडक्शंस इज डिफरेंट. 40A3 में लिखा अकाउंट पे चेक से है ना, पर डिडक्शंस में लिखा है कैश से मत कर. बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में भी अलाउड है. ऑब्वियसली सेल्फ चेक तो अलाउड है. बेरर, क्रॉस्ड, अकाउंट पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये तो अलाउड है. ये दैट मीन्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी पेड इन कैश. नाउ दिस इज एग्जैक्टली एज इट वाज लास्ट ईयर. सो 80D में अदरवाइज देन बाय कैश एक्सेप्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. देन डोनेशंस की बात आई, 80G और 80GGA. अगर डोनेशन एक्सीड्स 10,000, अगर 10,000 से ज्यादा डोनेशन दे रहे हो, देन इट हैज टू बी अदरवाइज देन इन कैश.
मतलब 10,000 से कम कैश में डोनेट कर सकते हो, पर 10,000 से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। एंड फ्रॉम दिस ईयर, एंड दिस इज द अमेंडमेंट, फाइनेंस एक्ट 13 ने क्या बोला, 80 GGB और 80 GGC पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेशन दे रहे हैं, देन इट हैज टू बी अदरवाइज देन इन कैश। सो इफ यू टेक अ क्वेश्चन, एक छोटी सी बात करेंगे। एक बंदा है, बिजनेस का इनकम है उसका, उसने रूरल डेवलपमेंट फंड को 10,000 रुपया कैश में डोनेट करा। नाउ रिमेंबर, रूरल डेवलपमेंट फंड को डोनेशन देना बिजनेस हेड में अलाउ होता है, 35 CCA। इस पे 48(3) लगेगा, और क्योंकि ये 20,000 से कम है, ये अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर एक बंदे के पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और उसने रूरल डेवलपमेंट फंड को 10,000 रुपया, चलो 11 ले लेते हैं, कैश में दिया। नो रिमेंबर, हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो कोई डिडक्शन नहीं मिल रही है, बट ये डिडक्शन मिलती है अंडर 80, बोलो, GGA। और क्योंकि डोनेशन 10,000 से ज्यादा है, अब ये अलाउ नहीं होगी। सो दिस विल बिकम डिसअलाउड। सो वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स दिस ईयर। 80D में हमने बात करी, जो अमेंडमेंट है, it has been noticed that there are other health schemes of central and state governments which are similar to CGHS, but no deduction for such schemes is available to the subscribers. In order to bring such schemes at par with CGHS, it is proposed to amend so as to allow the benefit of deduction under this section within the said limit in respect of any payment or contribution made by the assessee to such other health scheme as may be notified by the central government. तो अब एक बार एक छोटा सा क्वेश्चन 80D पे, लेट्स अज्यूम उसने अपने लिए 11,000 प्रीमियम पे करा, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन, लेट्स से नोटिफाइड स्कीम, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड स्कीम्स के अंडर 2,000 का प्रीमियम पे करा, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 3,000 रुपए खर्चे। फादर इज अ सीनियर सिटीजन और वो रेजिडेंट है, उनके लिए 15,000 रुपए यहां है और 4,000 रुपए यहां है। नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट द डिडक्शन? पहली बात, 11,000 प्लस 2,000 13,000 प्लस 3,000 16,000 विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15,000, क्योंकि यहां पर सीनियर सिटीजन नहीं है। सो मैं यहां पर डिडक्शन लूंगा 16,000 और 15,000, विच एवर इज लेस, विच मीन्स 15,000, विच मीन्स इसमें से मैंने सिर्फ 2,000 की डिडक्शन ली। 15 प्लस 4 19 है, विल बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू 20 बिकॉज सीनियर सिटीजन है। हाउएवर इस पे रिस्ट्रिक्शन 5 की लगनी है, 2 आप ले चुके हो तो यहां 3 मिलेगी। Therefore 3 plus 5 18 or 20,000 whichever is less is equal to 18,000. Therefore 15 plus 18 33,000. (80G) में एक छोटी सी और बात है। Remember there were A list, there was B list, there was C list and there was D list. जो A लिस्ट में आते हैं डोनेशन वाले, उनको आप डोनेशन दो तो 100% मिलती है। जो B लिस्ट में आते हैं उसको 50% मिलती थी। तो मैंने आप लोगों को क्लास में याद कराया था दैट द फंड्स कवर्ड बाय द B लिस्ट वर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, देन देयर वाज प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, देन देयर वाज चिल्ड्रंस फंड, देन देयर वाज
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फाउंडेशन। तो मैंने याद कैसे कराया था, मैं कहा था जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। फिर तुम्हें सिखाया था उनके ज़माने में सूखा बहुत पड़ता था, सो प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। फिर उनको बच्चों से बहुत प्यार था तो उनको चाचा नेहरू कहते थे, तो नेशनल चिल्ड्रंस फंड। इंदिरा गांधी उनकी बिटिया का नाम था और राजीव गांधी उनके दोते का नाम था। तो ये फंड्स हमारे बी लिस्ट में आते थे। इस साल कैसे याद करोगे, बच्चों से प्यार थोड़ा बढ़ गया है, सो नेशनल चिल्ड्रंस फंड हैज बीन टेकन टू ए लिस्ट। दिस यू विल रिमेंबर, बच्चों से प्यार बढ़ गया है। द नेशनल चिल्ड्रंस फंड will now be taken to A list, which means 100% deduction will be allowed. And then, like I taught you, in 80GGB and 80GGC, it is proposed to amend the provisions of the aforesaid sections to provide that no deduction shall be allowed under GGB and GGC in respect of any sum contributed by way of cash. और ये amendment हुई है 1 April 14 से। यहां पर मैंने मोड्स ऑफ पेमेंट समराइज कर दिए आप लोगों के लिए, एंड देयर इज एन एग्जाम्पल विच आई विल डू विद यू। सो लेट्स डू अ क्वेश्चन टू सी क्या तुम्हें समझ में आया। तो सीधा बैठ जाओ और दिमाग लगा के मेरे साथ साथ सोचो क्या कर रहा हूं मैं तेरे को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू गेट अक्रॉस टू यू बेटा, सो यू लिसन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, मिस्टर गुरनाम एज 62 ईयर्स, ये सीनियर सिटीजन हो गया, अर्नड प्रोफेशनल इनकम कंप्यूटेड ऑफ 5,50,000। चलो, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 ही हैज अर्नड इंटरेस्ट ऑफ 14,500 ऑन सेविंग्स अकाउंट। अब जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो साथ साथ ध्यान रखो कि ये क्यों इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेविंग्स अकाउंट का हमने क्या सीखा, टैक्सेबल होता है इंटरेस्ट, और 80 TTA, रिमेंबर 10,000 रुपीज तक की डिडक्शन मिलती है। सो पहले तो मैंने 14,500 अदर सोर्सेज में ले लिया, ये बिजनेस हो गया, प्रोफेशन। कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्स नहीं बोला है तो नहीं निकालेंगे, उसने बोला टोटल इनकम निकालेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू बिरला सन लाइफ इन कैश। चलो पहले तो दिमाग में सोचते हैं, क्या 80C में कैश में पेमेंट करना डिसअलाउ कर रहा है? नहीं ना, 80C में कैश अलाउ होता है, तो ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। अमाउंटिंग टू 25,000 फॉर द इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स। नाउ 80C में, जस्ट टू रीजिग योर मेमोरी सो दैट यू रिमेंबर, वो देखो क्या लिखा वहां पर, सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, विच मीन्स 80C में डिडक्शन इज नॉट गिवन फॉर प्रीमियम पेड फॉर पेरेंट्स, इट इज ओनली गिवन फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो ये तो अलाउड है ही नहीं, खत्म हो गया। अगला देखते हैं, और क्या इन्वेस्टमेंट करी भाई साहब ने। गुरनाम जी ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 का और पे करा फॉर हिज मेजर सन हु इज नॉट डिपेंडेंट। आप देखें, एग्जामिनर आपसे सारी इंफॉर्मेशन चाहता है, ही वॉन्ट्स यू टू नो डिपेंडेंट कहां आ रहा है, डिपेंडेंट कहां नहीं आ रहा है। नाउ इन 80C इट वॉज सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, वेदर डिपेंडेंट और नॉट। दैट मीन्स ये डिडक्शन मिलेगी। द सम इंश्योर्ड ऑन द लाइफ इज 175 एंड द लाइफ पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 1411। बेटा 1411 है, यानी 1412 से पहले है, यानी मैक्सिमम अलाउड इज 20%। सो अगर मैं इसका 20% निकालूं 35,000, देयरफॉर 25 अलाउड है। सो 80C में एक आ गया मेरे पास 25,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, चलो ये तो रेलेवेंट ही नहीं हुआ ना, 22,500 फॉर हिज लाइफ। The insurance policy is taken on 8/9/13 and the sum assured is 2 lakhs. अब पॉलिसी 1/4/13 के बाद है, पर हैंडीकैप के लिए नहीं है, ना ये 80DDB वाले के लिए है,
तो इस पे लिमिट कितनी लगेगी? मैक्सिमम 10%. सो 20,000 अलाउ हो जाएगा. एक और लिख लिया मैंने. Then he says premium of 16,000 paid by check for the health insurance of self and his wife. अब मुझे 80D का चार्ट बनाना है. सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. उसने पे करा है 16,000 मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. 1,500 पेड इन कैश फॉर हेल्थ चेकअप, ये अलाउड होता है. एंड 4,500 पेड इन चेक फॉर हेल्थ चेकअप ऑफ हिज पेरेंट्स, ये भी अलाउड होता है. सो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में यहां पर 1,501 आ गया, 4,501 आ गया. That's it. Now remember, he himself is a senior citizen. Therefore limit हो जाएगी 20,000. याद रखनी है ना बात. So 16,000 plus 1,500, 17,500 restricted to 20,000, so 17,500. जाहिर सी बात है, अगर ये खुद सीनियर सिटीजन है तो पेरेंट भी सीनियर सिटीजन होंगे ना. बट इस पे 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता. Therefore 3,500 आ जाएगा. Therefore 21,000 is the deduction under 80D. Then he paid interest of 6,500 on loan taken from a bank for MBA course for his daughter. Again let's go and check. एजुकेशन का लोन 80E, अगेन सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन तीनों के नाम हो सकता है. सो दिस इज अलाउड एज अ डिडक्शन एंड अंडर 80E देयर इज नो लिमिट. पूरा 6,500 इज अलाउड. अ सम ऑफ 15,000 डोनेटेड इन कैश टू इंस्टीट्यूशन अप्रूव फॉर द पर्पज ऑफ 80G फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग. अभी पढ़ा हमने. 80G में 10,000 से ज्यादा अगर कैश में गया अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड. एंड लास्ट में कंट्रीब्यूशन 10,500 मेड इन कैश टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट. नाउ इलेक्टोरल ट्रस्ट इज कवर्ड बाय 80GGC. और उसने बड़ी क्लियरली बोला है कैश में हो तो अलाउड है ही नहीं, ये भी अलाउड नहीं. Therefore, you can calculate your total income. So I'm hoping you've understood the points that we've done. क्योंकि ये वाला amendment का जो lecture है important है, हो सके इसको एक बार फिर सुनेंगे. You still have doubts, you can always give me a call.